This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been almost 20 years I have been working in this field, and I started my profession as an English language instructor. Now I am a language trainer. I normally train my students, and they also start teaching online after spending 6 to 8 months on my platform as a student or as a faculty member. What I am offering you in Ramadan is 30 days English language course, which I offer once in a year because this is a fact. Language cannot be learned in 30 days. Whether you talk about English language or any other language, you need 2 years. You need at least 2 years to learn any language. But you guys are lucky uh, you have been learning this language since your school life. So the time period may vary student to student. Are you getting my words? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात कर दूं, क्योंकि कुछ लोग मुझे इंग्लिश में सुनना भी चाहते हैं. They want to listen whether a teacher is capable of speaking English or not. I am sometimes a bit surprised that is people say, "Why don't you speak in English?" So actually, you can never judge a teacher why he is doing so. So I am just letting you know that your teacher, Alhamdulillah, knows how to speak in English. So, beta, when you learn a language, you need at least 2 years. But you guys are very lucky that you have been learning this language since your school life. This is the fact. And only this thing has made you able to understand this language. If I were speaking Chinese, if I were speaking Turkish, you would leave the session in 5 minutes. But I am speaking a language which you can at least understand. And most of you can only understand, right? आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ समझ ही सकते हैं. बस उनका प्रॉब्लम यही है कि वो बोल नहीं सकते. हम अंग्रेजी को समझ सकते हैं. कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जरा हैंड रेस करके बता दीजिएगा या टिक लगा दीजिएगा. देखिए नीचे रिएक्शंस होंगे. अगर टिक लगा देंगे तो सर यू आर एब्सोल्युटली राइट. अपने हैंड रेस के साथ टिक का ऑप्शन ढूंढे रिएक्शंस में जाकर. सर वी कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम इज स्पीकिंग. सो अब ये कहना भाई एक महीने में तो कुछ नहीं आ सकता, भाई 3 महीने में तो कुछ नहीं आ सकता, भाई आने को तो एक हफ्ता भी बहुत है. बिकॉज वी अंडरस्टैंड वी जस्ट नीड सम मैजिकल सेशंस विच गिव अस एबिलिटी टू स्पीक. हमारे अंदर का जो इंसान है वो बोल पड़े. We have good knowledge, we have good vocabulary, we know tenses up to some extent. That's why we understand. The problem is speaking. So अब ये कहना 30 दिन में अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती, तो बेटा ये it is absolutely wrong philosophy, right? It's absolutely wrong. English can be spoken in a week. English can be spoken in 30 days. English can be spoken in 90 days. English can be spoken in 2 years. It varies student to student. अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उर्दू मीडियम से पढ़कर आए. आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए. हो गया ना, वेरिएशन आ गई ना स्टूडेंट के अंदर. अब जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए उन्होंने मैट्रिक के बाद कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ ने इंटर किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया. इट मीन्स दैट व्हेन यू आर इन अ लैंग्वेज क्लास यू आर एक्चुअली यू हैव अ क्लास ऑफ मिक्स एबिलिटी स्टूडेंट्स. पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज क्लास के अंदर चले जाए, ये स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे. कौन से स्टूडेंट्स? मिक्स एबिलिटी. मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स सब एक क्लास में बैठे होते हैं. अब आप चाहते हैं इसको नहीं सर ऐसा कर देंगे सारे मास्टर्स हो, तो फिर आप चले जाइए ब्रिटिश काउंसिल, आप चले जाइए कैमली. They will ask for 27-30,000 rupees and they will give you individual sessions or they will give you the session according to your level. ऐसा 2,000 रुपए में तो नहीं हो सकता ना. टाइम नोट कर लीजिए. आपकी जो टाइमिंग्स होने वाली है, ये रमदान टाइमिंग्स लिखी हुई है. इंशाल्लाह 11 मार्च से ये टाइमिंग्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी.
2:30 से 3:30, रात में 9:30 से 11:30। आप चाहे इफ यू वांट टू हैव 4 hour सेशन इन अ डे, यू कैन। व्हाट आई बिलीव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देखिए झूठ नहीं बोलता, आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ। If you spend 4 hours a day, 30 days, 30 days a month, you will start speaking English, maybe fluently, but will not be correctly. To be very honest, you will start speaking English, you will start speaking English fluently, but it may not be correct because correctness, accuracy takes time. It's not like that you learned something today and you stop making mistakes in sentence and structures. आप मेरी बात समझ रहे होंगे. You must be getting my words. That if you learned something today and the same day you start practicing it and the next day you don't make mistake in it. It takes time. You need to repeat almost 30 to 100 times and you stop making mistakes. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Am I right or not? Right? कोर्स स्टार्ट हो चुका है बेटा, आप लोगों को एक्सेस मिल गई है, आप लोग सुबह से लेकर रात तक के सेशंस ले रहे हैं। ऑफिशियली 6 मार्च से गोलियां चलेगी। ये आपके सामने कोर्स कंटेंट आ गया है, जिसमें से कुछ कोर्स कंटेंट मैं आपको वर्कशॉप्स के अंदर ही पढ़ाता हूँ। जैसे आज आपकी ये पहली वर्कशॉप है कुछ स्टूडेंट्स की। ये आपके पास ऑफिशियल पूरा एक कोर्स आउटलाइन आ गई है डेट वाइज। 6, 7, 8 मार्च को रमजान नहीं होंगे तो मेरा जो लेक्चर होगा वो इसी टाइम पर होगा, 7 से 8, आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ। जैसे आज हो रहा है, जैसे कल भी होगा, परसों भी होगा, 7 से 8 में मेरा लेक्चर मिस मत कीजिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स एडमिशन कंफर्म करवा चुके हैं उनको मैंने वादे के मुताबिक कब से एक्सेस दे दी थी? सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। अगर आप एडमिशन कंफर्म करवा देते हैं तो आपको एक्सेस तो मिल जाएगी हमारे मुख्तलिफ सेशंस की, बट योर सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 6 ऑफिशियली। और उसकी टाइमिंग भी मैंने आपको कंफर्म कर दी है, 7 से 8 चल रही है अभी आपकी क्लास। 11 मार्च को पहला इंशाल्लाह रोजा भी होगा। 11 मार्च के बाद जो आपकी क्लासेस है वो टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए, वो है 2:30 से 4:30 दोपहर में, और रात में 9:30 से 11:30। आप 2 घंटे का सेशन लें, 4 घंटे का सेशन लें, आई डोंट माइंड। एडमिशन जो लोग करवा चुके हैं वो भी कितने घंटे का सेशन अभी से लेना शुरू कर चुके हैं। सुबह में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, रात में 2 घंटे, 1 घंटा 7 से 8 में मेरे साथ, यानी कि उनके पास एक्सेस आ चुकी है ये 7 घंटे। और फिर वो प्रोनाउंसिएशन सेशन भी ले रहे हैं किसके साथ? मिस मरियम के साथ, वो भी 5 से 6 में और रात 10 से 11 में। तो आपके पास एक्सेस तो आ जाती है तकरीबन 9 घंटे के सेशन की, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग योर कोर्स ऑफिशियली। ये आप लोगों के पास वादा मैंने किया था, वो वादे सारे वफा हो जाते हैं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्होंने सारे फ्री सेशंस अवेल कर लिए पिछले हफ्ते। आज 26 फरवरी है। आज मेरे साथ आपकी दूसरी ओरिएंटेशन है। लेक्चर 3 और 4 मेरा कल होगा। आज बस मैं जा रहा हूँ लेक्चर 1 और 2 जो मैंने लास्ट वीक डिलीवर किया था वो मैं करूंगा, और उसके बाद आपके पास इसकी भी एक्सेस होगी, ठीक है ना। और मेरी लास्ट ओरिएंटेशन 4 मार्च को एक्सपेक्टेड है। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये हो पाएगी, बिकॉज हमारा एक बैच में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, दूसरे बैच में हमारे एडमिशन चल रहे हैं। मैंने कहा था एक क्लास में हम 20 पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, तो 2 बैचेस के अंदर हमारे पास 40 पार्टिसिपेंट्स होंगे, यानी कि सुबह का एक बैच, दोपहर का एक बैच, एक रात का बैच। टोटल 80 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से एक बैच के एडमिशन हम क्लोज कर चुके हैं। अब हमारे पास दूसरे बैच के एडमिशन खुल चुके हैं। 5 मार्च हमारी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। 6 मार्च से ऑफिशियली आपके बैच स्टार्ट होंगे। कुछ लेक्चर्स मैं वर्कशॉप में देता हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और फिर आप अपने लिए कोई बेहतर फैसला कर सके, ठीक है। तो मुझे 7 से 8 में ज्वाइन किया करें, आज भी, कल भी, परसों भी। और बाकी जो क्लासेस है वो आपके पास आपका शेड्यूल आता है, उसके मुताबिक ज्वाइन कीजिएगा।
जूम ट्रेनिंग ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि मेरे रेफरेंसेस से आप लोग आते हैं, कोई ना कोई आपको रेफर करता है। प्रोफेशनल कोर्स आपका स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से, ये रमजान के बाद है। इसकी हमारी जो मंथली फीस होती है वो 4000 रुपीज होती है, 1000 एडमिशन होती है। और टोटल 13,000 का ये कोर्स होता है, जिसके अंदर आपके पास तकरीबन 9 से 10 घंटे के लाइव सेशंस हो रहे होते हैं। इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन भी है, 1-to-1 डिस्कशंस भी है, 3 घंटे की कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, 6 घंटे का ऑफिशियल, 9 आवर्स लाइफ एक्सेस होती है। और इसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको कहीं पर जाकर कोई नौकरी कर सके। इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत मुख्तलिफ होता है इन सेशंस के बाद। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बहुत नीचे होता है। ठीक है। एंड मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को हम एडमिशन नहीं देते अपने किसी भी सेशन के अंदर, इंटरमीडिएट कम से कम। लेकिन उसकी भी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी एक स्टैटिस्टिक्स निकाली थी, सबसे ज्यादा मेरे प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दे आर एक्चुअली मास्टर्स, राइट। फिर बैचलर्स और फिर बहुत थोड़े से 10% इंटरमीडिएट्स। जूम की ट्रेनिंग लेते हैं ताकि मजा आए क्लासेस लेने में। आपका कोई भी सवाल होगा आप हैंड रेस करेंगे, जरा हैंड रेस करके देखें। यू मस्ट नो दिस ऑल दीज थिंग्स व्हाइल लर्निंग ऑन जूम। वेरी गुड रोजीना, इकरा, बाकी लोग, इकरा मुगल। अच्छा, कभी आप देखा करें कि आपके नाम के 2-4 लोग और भी हैं तो अपना पूरा नाम मेंशन कर दिया करें। एना, ईमान, सिद्रा, आयशा, तैयबा, महविश, रिदा, निमरा। अच्छा, अब इतने सारे लोगों ने हैंड रेस किए हुए, आप चाह रही है कि आप थोड़े से मुख्तलिफ हो जाए, तो आप देखें आपके पास ऊपर कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आप एक हार्ट बना दें, स्माइल दे दें, थम्स अप कर दें। इकरा, एना, सिद्रा, फैसल, रुखसाना। आपने देख एकदम से ये जो हार्ट आता है ना, कितना रेड होता है कि फौरन स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाता है। तो फॉरेन टीचर कहता है अच्छा शी इज डाइंग टू स्पीक, ये कोड वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, सुमेरा, तैयबा। अब ये एक तरीका होता है कि आप हैंड डाउन करें, हैंड अप करें, हार्ट दे दो, यू विल कम ऑन ऑन द टॉप, राइट। तो ये दिस इज द ट्रिक, निम्रा। अब आप एकदम इतने सारे हैंड रेज है, आपका नाम टीचर को नहीं हाईलाइट हो रहा, तो हाईलाइट करने का तरीका मैंने बता दिया। हैंड लोअर, लिखे ना लोअर हैंड, लोअर हैंड करें, दोबारा हैंड रेस करें, हार्ट दें, आप टॉप पर आ जाते। सो दिस इज, दीज आर द ट्रिक्स टू participate. Yes, Rosina, you have learned this trick. Ishal, you also have learned it. Very good. चले, you are quick learners. Very good, Iram. अच्छा भाई, अब उसके बाद आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करते हैं। क्या आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? इज माय वीडियो विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो आप कहेंगे नो सर, क्रॉस लगाएंगे आप। क्रॉस, 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 क्रॉस। यू हैव अस्मा, महविश, अंसा, क्रॉस, क्रॉस। ये आपको राइट और यस और नो के जवाबात होते हैं, यस और नो के जवाबात। मैं आगे चलूं तो देखिए आपके पास फॉरवर्ड के एरोज आ रहे होंगे। मैं आगे चलूं बेटा? आगे चलूं? जी सर, बिल्कुल आगे चले आप। आगे चले सर, आगे चले। ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार ड्यूरिंग द सेशन ऐसा होता है, यू मिस समथिंग, कुछ आपके पास रह जाता है, आपके बीच में फोन कॉल आ गई। अब आप बोलना भी नहीं चाह रही है और चाह रही है कि टीचर अपनी बात को रिपीट करे, तो देखें बैक एरोस नजर आ रहा है आपको, ये बैक एरोस। एना, वेरी गुड, ईमान, वेरी गुड। इससे इसका मतलब ये होता है यू वांट योर टीचर टू रिपीट समथिंग, यू वांट योर टीचर टू रिपीट समथिंग, राइट। ये बैक एरोज, हैंड रेज नहीं अक्सर, बैक एरोज ऑफ, इससे इसका ये कोड वर्ड्स है ये। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज, लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स, राइट। वेरी गुड। आज बड़े ज्यादा लग रहा है अफ्तारी अच्छी की है लोगों ने, रोजा खोलने के बाद जो है थोड़ा दिमाग ज्यादा चल रहा है। दैट्स वेरी गुड। चले, अब आ जाइए चैट्स में आते हैं। मैं आपको देखें चैट के अंदर, अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए मैं चैट के अंदर आपको
लिख कर भेज रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। तो आप जैसे क्वेश्चन मार्क आया अगर अगर आपके पास, तो आप एक सलाम लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फरीहा, आयशा, सोबिया, ऐना, साइमा, वालेकुम अस्सलाम रुखसाना, सिद्रा, ईमान, किंजा, सुबैरा, सादिया, हवा, अस्मा, विशाल, रिजा, हिरा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, अब आपका माइक ऑन हो रहा है, ये लीजिए। अब आप माइक पे एक दफा टैप करेंगे और सलाम करेंगे माइक के अंदर, अस्सलाम वालेकुम सर। 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 अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। बन गई बिल्कुल वो वाली ट्रेडिशनल क्लास बन गई, एक दूसरे की आवाज आना शुरू हो गई अब आप लोगों को। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव सेशन। और मैं जितनी भी ग्रामर क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, और मेरे साथ जितने भी टीचर्स ग्रामर क्लास कंडक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारे जितने भी सेशंस हो वो टू वे कम्युनिकेशन हो, इंटरेक्टिव हो। ये ना हो कि ऐसा ना हो कि लगे कि यूट्यूब के लेक्चर्स चल रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स को जब आप सुनते हैं, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दोस सेशन, बट हियर व्हेन यू आर लाइव ऑन जूम यू कैन पार्टिसिपेट। ठीक है ना। चलिए, अभी तो मैंने, क्योंकि अपने मेरा एक बैच मैंने आपसे कहा 40 एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, सो दे आर आल्सो, सम ऑफ देम आर हियर। और कुछ मेरी आज वर्कशॉप के स्टूडेंट्स भी हैं हु आर विलिंग टू ज्वाइन मी। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 7 से 8 में अनलिमिटेड ही रहते हैं। ठीक है। हमारे पास जो फास्ट ट्रैक का सेशन हो रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, हमारे पास 2 सेशन होते हैं फास्ट ट्रैक के अंदर। वो होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख ले, ग्रामर प्लस स्पोकन। इससे ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, और हम कितना कुछ डिलीवर करने जा रहे हैं ये आपको शायद एक पेपर पे नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे इट्स टू मच। हमें हर क्लास में अपनी चीजों को आपको पढ़ाना भी है, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करवानी है, टू गिव यू द बेस्ट। ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है उसके अंदर हमारे पास डिस्कशन सेशंस है, उसकी एक्सेस आपके पास नहीं है। 1-to-1 डिस्कशन है, वो आपके पास नहीं है। प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन है, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, दैट्स अ फास्ट ट्रैक कोर्स एंड दैट कम्स वंस इन अ लाइफ टाइम। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि आप फास्ट ट्रैक को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद आप शिफ्ट करवा सकते हैं। जब आप इस कोर्स को मुकम्मल कर ले, सर्टिफिकेट ले लीजिए, आपको लगे कि नहीं यार यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी, अभी तो मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई है, सो यू कैन ज्वाइन मी। और एक बात और बता दूं, स्टूडेंट्स हु बिकम द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, उनके पास 1-to-1 डिस्कशन सेशन की एक्सेस रहती है पूरे साल। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आपने 3 महीने कोर्स मुकम्मल किया, हमने आपको धक्का दिया, अल्लाह हाफिज। नो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट लीव मी आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोफेशनल कोर्स। आई वांट यू टू प्रैक्टिस 1 hour डेली लाइव ऑन जूम। तो मेरे पास तकरीबन इस वक्त 600 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, और अगर मैं लगाऊं पिछले 8 महीनों के अंदर तकरीबन 600-700 स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ 1-to-1 डिस्कशन सेशन एंड दे कीप कमिंग ऑफ एंड ऑन। उस पर पाबंदी नहीं कि आप रोज आए, जब आपके पास टाइम हो आप 7 से 8 में हमें ज्वाइन करें। तो प्रोफेशनल कोर्स एक्चुअली गिव्स यू लाइफ टाइम एक्सेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 1-to-1 डिस्कशन सेशन में। ठीक है ना। फिर आपके पास एक यूएस क्वालिफाइड टीचर होती है हु हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। और फिर आपके पास डिस्कशन सेशंस होते हैं, उसमें 6 डिफरेंट टीचर्स होते हैं हु हेल्प यू टू डिस्कस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। लेकिन फास्ट ट्रैक में हम अगर ये सब कुछ ऐड कर देंगे तो वो फास्ट ट्रैक 1 महीने का कोर्स नहीं रहेगा, फिर वो वही 3 महीने में खत्म होगा, फिर वो फास्ट ट्रैक नहीं रहेगा। ठीक है ना। फास्ट ट्रैक का मतलब ये है दैट यू स्टडी ऑल दिस कोर्स कंटेंट व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। जो कोर्स कंटेंट आप प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स में पढ़ते हैं, वो पूरा कोर्स कंटेंट हम फास्ट ट्रैक में भी पढ़ाते हैं, लेकिन बस क्वालिटी सेम है, कुछ सेशंस आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है।
ठीक है, चलिए दिल छोटा ना करें। जब आप फास्ट ट्रैक कोर्स कर ले उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा बन जाइएगा। 15 अप्रैल से एक अच्छी डिस्काउंट ऑफर देंगे आपको। अभी तो ईद के बाद का जो हमारा पैकेज है वो ये है, 4,000 रुपीज मंथली, इस पर 25% ऑफ मिल रहा है, यानी 3,000 प्लस 1,000 एडमिशन फीस। लेकिन आपके लिए एक और अच्छी ऑफर आएगी, आप उससे फायदा उठा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पेमेंट मेथड है। जिसने अब तक फीस सबमिट नहीं करवाई है, सोच रहा है किसी शुभ मुहूर्त के बारे में कि वो घड़ी आएगी तो मैं सबमिट करवाऊंगी, मेरे हस्बैंड की सैलरी आएगी तो मैं सबमिट करवाऊंगी, आप करवा सकते हैं। 3 दिन का सेशन अवेल करें, लेक्चर 1, 2, 3 मेरे साथ अटेंड करें और फिर आप अपने लिए कोई बेहतर फैसला करें। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। लेक्चर 1 शुरू हो रहा है, नोट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? लोग मुझसे पूछते हैं आप बेसिक से पढ़ाते हैं, मैं जहां से पढ़ाता हूं वहां से मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई लैंग्वेज सेंटर पढ़ाता होगा या कोई लैंग्वेज टीचर पढ़ाता होगा। क्योंकि मैंने सबसे सबसे आखिरी जो सबसे बेसिक लेवल है वहां से स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले तो ABCD है, आप खुद देख लो और खुद मुझे आप बता देंगे। लेटर्स, अब बताओ इससे पहले मैं क्या बात करूंगा भाई? ठीक है ना, लेटर्स 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 लेटर्स। हमारी जिंदगी में सबसे पहले क्या आया था? लेटर्स आए थे ना, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। फिर हमने उसके अंदर दो चीजें और पढ़ी थी, याद करें, सारी बचपन की बातें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। आ गई बात। फिर हमारी जिंदगी में जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है वर्ड। अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये बातें हमें नहीं पता थी। हम लोगों ने वर्ड्स याद तो कर लिए, याद करें स्कूल के अंदर हम लोग डिक्टेशन करते थे, कोई चैप्टर पढ़ा, डिफिकल्ट वर्ड्स याद करते थे। हकीकत में हम लोग क्या करते थे? हम वोकैबुलरी के ऊपर काम कर रहे होते थे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं, व्हाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश, व्हाई डू वी मेक मिस्टेक्स इन आवर राइटिंग, व्हाई डू वी गेट स्टक? क्योंकि आपके नॉलेज में ये अल्फाज नहीं है। कौन से अल्फाज? जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। डेफिनेशन सुनिएगा, structural words are meaningless but they make your sentence meaningful। structural words meaningless होते हैं लेकिन ये आपके जुमले को मीनिंगफुल बना देते हैं। अगर आपके पास इन 3 चीजों की नॉलेज आ जाए ना, आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग की 80% मिस्टेक्स को खत्म कर देंगे। और 20% मिस्टेक्स बताओ किसकी होती है? बता दो, बता दो। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो ये गलतियां कहलाती हैं स्ट्रक्चरल एरर्स, जिसको हम दूसरे जबान में फॉर्मेशनल एरर्स भी कहते हैं। वो दूसरी जो गलती है जो 20% होती है वो बेटा आपकी वर्बल मिस्टेक। और देखिए मैं अभी आपसे कुछ सवाल करता हूँ, अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर ले जो मेरे साथ क्लास में मौजूद है और साथ साथ मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं कोई खाना नहीं बना रहा, वो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं ताकि मैं उनसे सवाल पूछता रहूं। अच्छा, मैं पार्टिसिपेट करने का तरीका होता है कि मैं आपसे सवाल, आपका नाम लेता हूँ। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बस अपना माइक ऑन किया और शुरू हो गए। डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आपके माइक की सर्विसेज आपके पास रहती है। ठीक है ना, अदरवाइज फिर आप म्यूट ऑल पे लग जाते हैं जब आप नहीं बात को सुन रहे होते और समझ रहे होते। चले, काश ये ऑप्शन हमारी रियल लाइफ में भी होता तो हम बहुत सारे मामला हमारी जिंदगी के बेहतर होते हैं। लेकिन हम लोगों को म्यूट ऑल पे नहीं लगा सकते। चले, अब देखिए मैं आपसे वर्बल एरर्स, सर ने कहा कि वर्बल एरर्स जो होते हैं ये हमारी जिंदगी का 20% है। लेकिन ये वर्बल एरर कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत ही आसान सी बात है। आप लोग इस पे कोई टेंशन लेने की वाली बात ही नहीं। भाई वर्बल एरर, हम क्या, वर्ब की गलती क्या हो सकती है? वर्ब की गलती ज्यादा से ज्यादा, पहली जो आसान गलती है, हम फॉर्म की गलती कर देते हैं। फॉर्म की गलती से मुराद ये होता है, और यही सारी गलतियों को कवर कर लेती है। भाई मुझे कहीं पर लिखना था गो,
मैंने गलती से क्या लिख दिया, वो या तो ये गलती है, या फिर हमें लिखना था वेंट, हमने लिख दिया गो, या फिर हमें लिखना था हैज गॉन, हमने लिख दिया वेंट, या फिर हमें लिखना था हैज बीन गोइंग। इसके अलावा बताओ वर्ब के साथ कभी कोई गलती हो सकती है? गलती के स्टैंडर्ड यही है ना, एक वर्ब की गलती। गो, गोज, वेंट, गो, गोज, वेंट, हैज गॉन, हैज बीन गोइंग। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कोई और वर्ब की गलती हो सकती है? आप यस और नो में बोल सकते हैं, आप इसमें बोलकर है अपना माइक बंद कर सकते हैं। Yes, sir, you are right. ये गलती है ना वर्ब की, इससे ज्यादा तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा गलतियां हैं जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, वो है बेटा आपके फॉर्मेशनल एरर्स, जिसमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस की बेशुमार गलतियां हो रही हैं। और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या पढ़ते हैं? आप लोग टेंसेस पढ़ते हैं, पढ़कर आ चुके हैं स्कूल लाइफ में, आज भी वही गलतियां करते हैं। आप मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं, आप लोग क्या पढ़ते हैं? कंडीशनल्स पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? इसके अलावा क्या बचा बताओ? कुछ बचा है जिंदगी में? चलो पैसिव। लेकिन तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये पैसिव तुम लोग बनाते किसका हो? ये सब कुछ तुम एक्टिव में पढ़ते हुए जा रहे हो, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, फिर तुम इन सबका ही क्या बना देते हो? पैसिव बना देते हो। बुनियादी चीज तो यही है ना, टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स, उन्हीं का पैसिव। और फिर एक टॉपिक और आपकी जिंदगी में आता है, नरेशन, लेकिन उसमें भी क्या होता है? टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स ही होते हैं। तो पैसिव और नरेशन कोई नया टॉपिक नहीं होता है। आपने टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स पे उबूर हासिल कर लिया, तो पैसिव और नरेशन आपके हाथ में। सिर्फ 4 दिन का गेम है। यानी कि वर्बल एरर तो कोई मसला है ही नहीं। मसला कौन सा है बेटा? आज पहले दिन पहली डिशेस में बता दिया है, जिस पर आपको जिंदगी भर काम करना है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आर्टिकल्स, preposition, कंजंक्शंस। अगर मैं आपको आज के ही सेशन के बाद आर्टिकल्स, preposition और कंजंक्शंस के ऊपर नोट्स प्रोवाइड कर दूं, अपना एक एक लेक्चर दे दूं, तो क्या आप अपनी जिंदगी में इस हफ्ते में कुछ वक्त निकालकर आर्टिकल्स का 1 घंटे का लेक्चर सुन लेंगे? प्रेपोजिशन Definitely, का sir. 1 घंटे का लेक्चर, कंजंक्शन। Yes, sir. अच्छा, इस लेक्चर को सुनने से सिर्फ हमारे सांस बहाल होगी, हमें तमीज आएगी कि यार हाँ, ये गलतियों से बचना चाहिए। उबूर हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, मास तो मिल जाएगा कि कुछ स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं कर रहे होंगे जो हम कर रहे होते हैं। तो आज के सेशन के बाद कुछ असाइनमेंट्स फॉरवर्ड करूंगा मैं आपको, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस पर। इसके नोट्स भी दूंगा और उनके लेक्चर्स भी दूंगा, सपोर्टिंग लेक्चर्स के नाम से आप। ठीक है बेटा, चले। अभी आप देखें, अभी मैं लेटर से वर्ड्स पर आया था और मैं यहीं पर आकर फंस गया। आपने देखा, हमें तो वर्ड्स ने ही फंसा दिया, अभी तो हम आगे जा ही नहीं पा रहे थे। अब हमारी जिंदगी में आ रहा है फ्रेज। फ्रेज, और फिर आज की जिंदगी में आएगा क्लॉज, और फिर हम बात करेंगे सेंटेंस की काइंड्स पर और सेंटेंस की वेरिएशंस पर। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, पार्टी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट इज फ्रेज? तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, और स्क्रीन के ऊपर नजर रखें, आपको बातें समझ आएंगी। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सम मीनिंग। आप ये भी कह सकते हैं इनकम्प्लीट मीनिंग्स। A phrase is a group of words that function as a single unit within a sentence. आप phrase को जुमले के शुरू में ले आए, आखिर में ले आइए, ये एक यूनिट है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। It does not have a subject and a verb. इसके अंदर आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, इसमें आपको वर्ब नजर नहीं आएगा, which means it does not express a complete thought on its own. ये आपको मुकम्मल मीनिंग्स नहीं देगा। और फ्रेज हमारे पास 2 तरह के आपको नजर आ रहे होंगे, 2 तरह के। वैसे तो फ्रेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपके जिंदगी में 2 तरह के फ्रेज आ रहे हैं, नाउन फ्रेजेस और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। कौन मुझे बताएगा इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? नाउन फ्रेज को कैसे पहचानेंगे? हैंड रेस करके, हैंड रेस कीजिए, आपका नाम लिया जाएगा, फिर आप मुझे बताएंगे।
कैसे पहचानूं कि ये नाउन फ्रेज है, कैसे पहचानूं रोजीना, कैसे पहचानूं कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है? यस, अपने माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा। इट्स ओके सर, जिसके स्टार्ट में ए एन और दी आएगा ये नाउन फ्रेज होंगे और प्रेपोजिशनल फ्रेज और बाकी जिसके में prepositions the, on to and behind ये prepositions phrase होंगे बस under लगा ले, रट्टा लगा लीजिए। कुछ चीजें रट्टा लगाने वाली होती हैं, लगाइए रट्टा। आ, एन और दा, अगर आपको कुछ वर्ड्स के शुरू में दिखता है तो ये नाउन फ्रेज माना जाता है। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स आपको मिलते हुए नजर आ जाए, जैसे ऑन द टेबल, अंडर द ट्री, बिसाइड द रिवर, मैंने बहुत सारे prepositions आप लोगों के लिए लिखे हैं, तकरीबन बहुत सारे फ्रेजेस लिखे, बहुत सारे prepositions हैं, सारी तकरीबन मैंने मोस्ट कॉमन prepositions आपके सामने लिख दिए। आप कोई सा भी preposition लगाएं और उसके बाद कोई आर्टिकल आ जाए, ना भी आए, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिर नाउन आ जाए, तो वो कहलाता है prepositional phrase। आपसे एक एक्सरसाइज दी जाए आपको और आपसे कहा जाए नाउन फ्रेज को अलग करें, prepositional फ्रेज को अलग कर दें, तो क्या आप ऐसा करके दिखा देंगे? कोई परेशानी? आसान सी बात है। yes sir कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है क्लॉज। अच्छा देखिए, मैं क्लॉज को सेंटेंस का दर्जा दे दूं तो कोई लोग, कुछ लोग मेरा गिरबान पकड़ लेंगे कि तुमने क्लॉज को सेंटेंस कैसे कह दिया, ये मुकम्मल मीनिंग नहीं देता है। सही है, लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस ना कहूं तो फिर मैं क्या कहूं? तो फिर गोरे ने कहा कि आप एक काम करें, आप इसको एक ऐसी डेफिनेशन दे दें कि लोग खामोश हो जाए और आपका गिरबान ना पकड़े। कहता है अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा और इसके अंदर आपको वर्ब भी दिखेगा, तो फिर तो सेंटेंस बन गया। सुन तो ले आगे। अनलाइक अ फ्रेज, अ क्लॉज कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन जो क्लॉज होता है वो आपको एक मुकम्मल मीनिंग देता है, एंड और दे सकता है, एंड कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस, खुद लिखता है, ऑन इट्स ओन, और एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, और कभी कभार ये एक सेंटेंस का सिर्फ हिस्सा रहता है। अब ये जो बात हो रही है ना, कभी कभार एक सेंटेंस का हिस्सा रहता है, असल में क्लॉज दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। और हमेशा मैं कहता हूं कि जो आइल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि आने वाली जिंदगी में भी, जो आज के सेशन में मैं एक बात और बताऊंगा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर तो आने वाली जिंदगी में आप आइल्स के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है खुद मुख्तार, सबको समझ आती है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, सर हसीब टीचर्स अस, आई स्पीक इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। नीचे देखिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपके सामने लिखे, आप कहेंगे सर ये तो सेंटेंस है, शी वॉक टू द स्टोर। आज से पहले ईमानदारी से बताइएगा उनसा, आयना, आज से पहले ये किस नाम से जाने जाते थे आपके इलाके में, आपके शहर में? शी वॉक टू द स्टोर। सही है, तो सेंटेंस सर। सेंटेंस। आज आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, तो चले हम मान लेते हैं दे प्लेड सॉकर इन द पार्क, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एक्चुअली अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन नीचे देखिए डिपेंडेंट क्लॉज, क्या आप इसको सेंटेंस कह सकते हैं? कभी भी नहीं कहेंगे। व्हेन आई वाज यंग, जवान तो मैं अभी भी हूँ, जुमला लिखा हुआ है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। क्या ये सेंटेंस है? इसने सेंटेंस की डेफिनेशन को पूरा नहीं किया है। सेंटेंस तो नहीं है, सेंटेंस तो कहता है which gives complete thought, complete meaning. If it rains tomorrow, अगर कल बारिश होगी। Although he tried his best, हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, तो क्या हुआ? फेल हो गया। अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस है? नहीं। जब भी क्लॉज को क्लॉज कहा जाता है, सेंटेंस नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके अंदर भी दो तरह के क्लॉजेस होते हैं। एक इंडिपेंडेंट, जिसको हम सेंटेंस का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस का दर्जा नहीं दे सकते।
इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। आप इसके साथ आप हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाएंगे, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट। अब ये सेंटेंस, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट, इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन दिस इज इटसेल्फ I will stay at home. This sentence is also a complete sentence itself. लेकिन जब आप डिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, क्योंकि ये बात आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, ये सर ने अभी हाल ही में ऐड किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। अब आपके पास अगर एक एक्सरसाइज दे दी जाए आपको, ये बताइए ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट है, तो आप बता देंगे डिफरेंशिएट कर? जी सर। की बात है। Yes, sir. 20 आउट ऑफ 20 आज रात 12 बजे जब मैं रिजल्ट देखूंगा, सबके 20 आउट ऑफ 20 आए हुए होंगे Inshallah. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सेंटेंस, अब आया जिंदगी में सेंटेंस। A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence normally ends on full stop, question mark, or mark of exclamation. A sentence is a group of words which gives us complete meaning. अब याद करें बचपन की बातें, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होते हैं हमेशा। अब कोई मुझसे ये कहते सर ये क्या होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, अगर किसी को ये भी नहीं समझ आता व्हाट इज अफर्मेटिव व्हाट इज नेगेटिव, वो अपने पैसे लेकर वापस जा सकते हैं। आई डोंट वांट एनीवन टू वेस्ट देयर मनी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सर जी ये बताए ना क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमें तो नहीं पता। सवालिया जुमले, जब भी मैं मैट्रिक लेवल से नीचे के स्टूडेंट्स लेता ही नहीं हूँ, इंटर वाले भी बहुत कम आते हैं, सारे बैचलर्स और मास्टर्स ही आते हैं। ये बातें तो आपकी बड़ी बुनियादी है। अब सवाल दो तरह के होते हैं, जब ये बहुत डिटेल में लेक्चर भी आता है आपके पास, क्योंकि हम आपको सवाल पूछने का तरीका जरूर सिखाते हैं। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस, डू यू ड्राइव अ कार, नो, या तो यस में आएगा जवाब या नो में आएगा जब आप नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन व्हाट डू यू वांट, चाहती क्या हो तुम, आईफोन 15, Why are you crying? Because you don't give me time. रीजन आ रहा है, लोकेशंस आ रही है, मुख्तलिफ जवाब आते हैं जब आप WH वर्ड्स लगाते हैं। फिर याद करें आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे बचपन में, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई नसीहत करे, आप ऑर्डर करे, इल्तिजा करे, हिदायतें दे, खड़े जाओ, स्टैंड अप, लिसन टू मी, ओपन द डोर। याद आया ना? पुरानी बातें हैं, नई बात कोई भी नहीं बताई अभी मैंने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अलांटी हम मैच जीत गए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाओ that performance was incredible, alas she has died। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमले, अल्लाह करे मुझे इंग्लिश आ जाए, मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, I wish you good luck in this course. May peace prevail in the world. एक्सरसाइज आ गई अब आपके पास, क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपकी चैट ऑन हुई है, 1 डॉट करके लिखिएगा, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। ये सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये नाउन फ्रेज है, या ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। आप 1 डॉट करके लिखिएगा, एस लिख देंगे काफी है। वेरी गुड किंजा, रोजीना वेरी गुड, एना वेरी गुड। 1 डॉट करके सिर्फ एस भी लिख देंगे चलेगा, निम्रा वेरी गुड। सेंटेंस 2 डॉट करके लिखिए, बताइए अगला, अगले पर आ जाइए। द क्यूरियस लिटिल किटन, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सोच ले। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये सबसे बड़ी निशानी। इसमें अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपने दिखा दिया, 5,000 रुपए कैश अमाउंट। द क्यूरियस लिटिल किटन में वर्ब दिखा दीजिए और सब्जेक्ट दिखा दीजिए, दिखाई नहीं पाएंगे, 5,000 रुपए वापस जेब में चले गए हमारे।
ये नाउन फ्रेज है, याद करें भी आपको रट्टा लगवाया था शुरू में, आ एन और दा आ जाए तो नाउन फ्रेज। अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज 3 डॉट करके लिखिएगा। अंडर द ब्रिज क्या है ये? अंडर द ब्रिज prepositional phrase, prepositional phrase, under the bridge, under the bridge. Very good. When the sun sets, when the sun sets, ये क्या है? 4 डॉट करके वर्ब भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, लेकिन बात अधूरी है। अगर तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता तो आगे फुल स्टॉप लगा हुआ होता, जब सूरज डूबेगा तो क्या करोगी, आगे अधूरी भी बात है ना बेटा, इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद करता हूं मैं। ये सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिएगा, और इसके फौरन बाद आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। अब आ जाइए वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अगर तो आप आइल्स के पेपर में हाल ही में अपियर होने जा रहे हैं या आने वाली जिंदगी में अपियर होना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं हमारी इंग्लिश का जो लेवल है वो इंटरमीडिएट है, मैट्रिक लेवल है, बिगनर्स लेवल है, तो आप सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देख लीजिए। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंसेस आप सबको बनाना आते हैं, इसमें अफर्मेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो आपकी जिंदगी में आता है कंपाउंड सेंटेंस। ऊपर देखें, बिल्कुल टॉप पर देखें, मैंने 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है, लेकिन ये जो 2 सेंटेंसेस होंगे इन दोनों को अलग कर दीजिए तो भी ये अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। शी कॉल्स मी एवरी डे, एक सेंटेंस, बात समझ आ रही है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। वी टॉक फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे बातें करते हैं, बात मुकम्मल है, कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों बातों को मैं जोड़ना चाह रहा हूं, जोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। 2 सिंपल सेंटेंसेस को अगर आप जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अभी आपने ताजा ताजा, बिल्कुल 2 मिनट नहीं हुए, अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, इफ माई वाइफ कम्स टू नो, मैंने कहा शी कॉल्स मी एवरीडे, वो मुझे रोज फोन करती है, हम 2 घंटे बातें करते हैं। अगर मेरी बेगम को पता चल जाए, इफ माई वाइफ कम्स टू नो शी विल किल मी। अब बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? 2 सेंटेंसेस जोड़े मैंने, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में गौर से देखें, क्या मैं इन 2 सेंटेंसेस को अलग कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट दीज 2 सेंटेंसेस? अगर मैंने ये 2 सेंटेंसेस को अलग कर दिया तो क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक अधूरा रह जाएगा। तो जब आप एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब आप देखिए यही बात, अब दोबारा देखिए, गौर से देखिए, व्हेन सारा कॉल्स मी, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन बताएगा मुझे? व्हेन सारा कॉल्स, इंडिपेंडेंट सोच लो, इंडिपेंडेंट सोच लो, जब सारा मुझे फोन करती है। सर हाँ, डिपेंडेंट क्लॉज। अब आप सुनना चाह रहे हैं ना आगे क्या होता है? सर बताया था, हम भी जानना चाहते हैं It's a dependent क्या clause. चलता है सर। व्हेन सारा कॉल्स मी, जब सारा मुझे फोन करती है। हाँ तो बताए ना सर, आप छुपा क्यों रहे? इसका मतलब ये कि आप आगे सुनना चाह रहे हैं कि एक डिपेंडेंट क्लॉजेस को अपने आगे क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। आई नॉर्मली स्पीक इन इंग्लिश एंड टॉक टू हर फॉर 2 आवर्स, मैं ये भी लिख सकता हूँ, वी टॉक फॉर 2 आवर्स। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि जब आप दो, अपने माइक बंद कर दिया करें, जब आप 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस, तो बन गया ये। और जब आपने इसमें एक
डिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और ये 4 वेरिएशंस आपको समझनी है मुझसे 4 मिनट के अंदर। ये देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में कोई टेंशन नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर देखिए एक मसला फंसेगा। वो मसले का हल मैंने पहले ही दे दिया आपको। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको 3 लेक्चर्स दूंगा सपोर्टिंग। कौन कौन से? आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। आप ये देखिए कि जब आप 2 जुमलों को जोड़ते हैं, आपकी तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। आप लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये देखें, प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो गई ना। आप तो 2 सेंटेंस जोड़ ही नहीं सकते। क्यों? आपको कंजंक्शंस आते ही नहीं है। यही यही असल में देखो बेटा, जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, ये पूरा एक सिस्टमैटिक चीज है। मुझे पता है कि आपको आगे चल के कंजंक्शन की प्रॉब्लम आएगी। मुझे पता है जब आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो कंजंक्शन पे जाके गोट फंसेगी। इसीलिए मैंने उसका सपोर्टिंग लेक्चर आज आपको देने का फैसला कर लिया नोट्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके 2 सेंटेंसेस जुड़ना शुरू हो जाए, फ्लुएंसी जब ही आएगी ना जब 2 जुमले जुड़ेंगे। वो 2 जुमले जुड़ते ही तो नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन की नॉलेज नहीं है। और नॉलेज ना होने की वजह से ही फ्लुएंसी नहीं आती है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ये इस बात से एग्री करेंगे। व्हेन यू लैक इन नॉलेज यू डोंट गेट फ्लुएंसी। आप मुझसे बोले फिजिक्स पे बात करें, आई डोंट हैव नॉलेज, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक। बट यू आस्क मी टू टॉक ऑन इंग्लिश, आई विल नॉट स्टॉप एवर। 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बीच में क्या लग रहा है? कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस को सीखने से पहले किसको सीखना चाहिए? अकल क्या कहती है? कंपाउंड सेंटेंस को सीखने से पहले किसको सीखना चाहिए? सिंपल सेंटेंस। ना ना, कंजक्शन को। कंजंक्शंस को। लेकिन फिर भी तुम लोग अपनी किस्मत आजमाना, फिर भी तुम लोग अपनी किस्मत आजमाना। मैं भी एक एक्सरसाइज दूंगा, तुम्हें एहसास होना चाहिए, हाय अल्लाह हमारे तो कंजंक्शंस बहुत बुरे हैं। क्योंकि जब तक हम पत्थर से ठोकर नहीं खाते हम संभलते नहीं है। ठीक है ना? तो आज आप एक दफा ठोकर खाएंगे, फिर आपको एहसास होगा हमारे कंजंक्शंस बहुत बुरे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मसला हल कर दिया है मैंने आपको। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज अच्छे से समझा दिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? देखिए, 2 सिंपल सेंटेंसेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम कहां पर आएगी? जब आप 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो आपको ये जो कंजंक्शंस लगाने पड़ते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत सारे मेरे पास बच्चे होते हैं वो चाहते हैं एग्जाम्पल बहुत सारी मिल जाए। सर गिव मी 30 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ये लीजिए 30 एग्जाम्पल्स आ गई है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसान हो गई बात। सर कंपाउंड सेंटेंसेस की अगर आप 30 एग्जाम्पल्स दे दें, ये लीजिए। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अभी फरमाइश थी तो मैंने लास्ट वीक में ऐड कर दिया बच्चों के लिए। मेरे नोट्स में एडिशंस होते रहते हैं। जो कॉपी आपके पास है वो पहले कंपाइल्ड हो चुकी थी। एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आपको 3 सेंटेंसेस नजर आते हैं। ठीक है ना? चलिए एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, देखता हूं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं अपनी चैट्स के अंदर, शी लव्स टू, शी लव्स टू सिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स है? शी लव्स टू सिंग, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। अच्छा, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरी, ये बताइए सर ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगर ये बात समझ आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तीसरी बात, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक, बताइए ये कौन सा सेंटेंस है?
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपने इन तीनों सेंटेंसेस को पहचानना शुरू कर दिया तो आई गिव यू कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया। आप इस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक एक्सरसाइज ये वाली, इसी के ऊपर जाएंगे तो आपको एक एक्सरसाइज और मिलती है, इसमें आई किस्मत आजमाते हैं। हमारे पास 3 मिनट है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं और 1 मिनट के अंदर आप मुझे 5 जवाब दें। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो, मैं क्या लगाऊं? एंड लगाऊं, बट लगाऊं, और लगाऊं, सो लगाऊं, येट लगाऊं? 2 सेंटेंसेस को जोड़ना चाहता हूं। अपने जवाब अपने पास लिख कर रखिएगा, याद रखिएगा कि आपने क्या लगाया। जो भी आप लिखना चाहते हैं अपनी चैट में लिखकर फॉरवर्ड कर दें या अपने पास लिख के सेव कर लें। दूसरा, ही वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, अब मैं क्या लगाऊं? एंड लगाऊं, बट लगाऊं, और लगाऊं, सो लगाऊं, येट लगाऊं? जो दिल चाहे आपका लगाइए और अपने जवाब को याद रखिएगा कि मैंने क्या लिखा। ठीक है, पेंसिल है तो अपने पास पेपर पे लिख लो। ये 1 का मैंने ये लिखा, 2 का ये लिखा। 3, she loves reading novels, she also enjoys watching movies, क्या लिखूं? ठीक है। नंबर 4, they practice for hours, they perform exceptionally well in concert, क्या लिखूं? Yet, so far, so, or, but, and, क्या लिखूं? We can go for a walk, we can also stay home and watch a movie, आपका जवाब। हो गए 5 जवाब। आइए अब अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करें और ईमानदारी से बताइए 5 में से कितने नंबर आपने लिए। इशाल, बट, एंड, और 5 में से 5। तारीख में पहली स्टूडेंट आई है, गॉट 5। ये प्रीवियस क्लासेस का असर हो सकता है। चले, वेरी गुड। इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिएगा। लेक्चर 1 आपका इख्तिताम पर पहुंच चुका है। कल आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 आपके पास आ रहा है। कल सर क्या पढ़ाएंगे? कल की बातों का आगाज होगा सेंटेंस फॉर्मेशन से। जो स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं उनको सारे सेशंस की एक्सेस मिली हुई है। अभी जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, आप इस हफ्ते सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10 उन तमाम क्लासेस में जाकर अपनी लर्निंग का आगाज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं। आपका ऑफिशियल कोर्स जो स्टार्ट होगा वो 6 मार्च से होगा। आज ये पहला लेक्चर था, कल दूसरा, तीसरा। ये बेसिक लेक्चर्स है जो मैं चाहता हूँ कोर्स शुरू होने से पहले आपके जहन में ये बातें हो, ठीक है ना। आपके मोबाइल फोन, आपकी स्क्रीन के ऊपर पेमेंट मेथड आ रहा है, आप इसी पेमेंट मेथड को फॉलो कीजिएगा और किसी दूसरे पेमेंट मेथड को फॉलो कीजिए नहीं कीजिएगा। हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हमारी कोई एडमिन पर्सन आपसे राब्ता नहीं करती। हमारे जितने एडमिन के नंबर होते हैं वो आपको कम्युनिटी के अंदर दिख रहे होते हैं। अगर आपको किसी और नंबर से मैसेज आता है, कोई आपको ग्रुप में ऐड करता है, तो आप उसकी शिकायत हमें लाजमी करें, क्योंकि अक्सर लोग हमारे साथ स्कैम्स और फ्रॉड कर रहे होते हैं। हमारे मैसेजेस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कभी कभार और कहते हैं आइए और फीस हमें जमा कराइए, पढ़ाते हैं हमें, फीस वो ले लेते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो व्हाट्सएप पे आप अपना एक वॉइस नोट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।